profession of the world can be respected. Today, on the auspicious day of Teachers' Day, we would express our gratitude to all teachers in the school and all over the world. So let us start this wonderful program today by prayer. I would like to call Mass to recite prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Thank you, ma'am. A teacher is just like a candle. It consumes itself to light the way for students. Yes, teachers are of course like a candle. Dr. APJ Abdul Kalam once said, teachers are the backbone of any country, the pillar upon which all aspirations are converted into reality. And now I would like to call Zaid to recite hers. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. حمد تیرے خدائے مہرباں پکار سازے دو جہاں تیرا کرم ہے بے قرار تو رب ذوالجلال ہے تو رب ذوالجلال ہے کوئی نہیں تیرے سوا جو دے کسی کو آسرا اگر نہیں تیرے رضا تو زندگی وہ بال ہے تو زندگی وہ بال ہے ہر طرف ہے ذوفاون افق افق کرن کرن تو ہر طرف ہے ذوفاون افق افق کرن کرن جبل جبل دامن دمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی چمن چمن تجھی سے کیف و رنگ بو نوا تجھی سے آب جو ہر ایک سمت تو ہی تو مرکز جمال ہے تو مرکز جمال ہے یہ مہرونا وہ کہکشاں یہ نیلا نیلا آسماں یہ مہرونا وہ کہکشاں یہ نیلا نیلا آسماں یہ دشت و بیرو بے قرار یہ مسکراتی وادیاں یہ مسکراتی وادیاں تجھ سے روشنی تجھی سے نظم زندگی محال تیری ہمسری تو رب بے مثال ہے تو رب بے مثال ہے تیرے حبیب مصطفیٰ
امم شاہ خدا وہ جن پہ جانو دل فدا غلام نیر آپ کا غلام نیر آپ کا تو چارہ کر ہو گرپوشا کرم ہو اس پہ اے خدا یہی ہے تجھ سے التجا یہی تو عرض حال ہے. Thank you, Zaid, for your soothing voice. And now I would like to call Masiar from grade 9 to recite Inal. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود جمع کا نذرانہ پیش کریجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وصلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے. انہی کی خدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے. وصلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو گجا من گجا
जा तू पूजा मन को जा तू पूजा मन को जा तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू गुजा मन को जा 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 अस्सलाम वालेकुम Thank you, Muftiya. Now I would like to call Zainab from grade 10 to welcome all the dignitaries on the dais and all the teachers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to everyone. As you all know, today we are gathered here to celebrate the Teachers' Day and to thank and praise them for their dedication and hard work. On this auspicious day, I would like to welcome all of you. On this auspicious day, I would like to welcome all of you. Firstly, I would like to welcome President of this celebration, Syed Mustafa Sir, and also President of our institution. We heartily welcome you, sir. Next, I would like to welcome Chief Guest of this celebration, Iftikhar Ahmad Sir, Secretary of our institution. Next, I would like to welcome Joint Secretary of our institution, Ejaz Ahmad Sir. We heartily welcome you, sir. Now, I would like to welcome our school director, Abdul Subhan Sir. I heartily welcome you, sir. Next, I would like to welcome our school principal, Jafar Sadiq Sir. We heartily welcome you, sir. Next, I would like to welcome our all teachers, staff, those are present here. I welcome you all. Next, I would like to welcome our all friends. I welcome you all. Happy Teachers' Day to all the teachers. Thank you. Thank you, Zainab. Now I request all the dignitaries to inauguration the function by cutting the cake.
Honorable Chief Guest, Mr. Iftihar Ahmad Khan, sir, on this day to share thoughts and enlighten us on this special day, and also enlighten us about the role of teachers in life. पहले क्लाप्स मार डाल रही हैं, इसका मतलब क्या कहता हूँ, ज़्यादा बोलने को जाग बैठो बोल कर, ठीक इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर साहब, दीगर अराकीन, असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, आज ये दिन जो है सिर्फ असातिज़ा इकराम के लिए रिज़र्व है। अब इस दिन में जितनी भी खुशी है, ये बज़ाहिर आप लोग केक काट कर ये क्या डेकोरेशन करके सारी चीज़ें किए हैं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि उस्ताद का एहतराम जो है इस उम्मत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के तमाम नेमतों में अल्लाह के रसूल साहब यूँ कहते हैं, मुझे बहुत सारी नेमतों से नवाजा गया, जैसा कि आखिरी रसूल बनाया गया और सरदार पैगंबर बनाया गया, आखिरी रसूल बनाया गया, और उसके साथ साथ मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया। मैं इन सारी नेमतों से अफजल नेमत मैं जो पसंद करता हूँ वो उस्ताद की नेमत है। अल्लाह के रसूल सल्लम का कौल है, और इनका एहतराम कितना है। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का कौल है, ये दुनिया जानती है, दुनिया के तमाम उलमा इकराम का इत्तेफाक राय है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद जब जिसका इल्म है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह का है। वो कहते हैं, मुझे कोई शख्स एक हुर्फ सिखा दे या एक लफ्ज़ सिखा दे, मैं उसका ग़ुलाम हूँ, चाहे वो मुझे बाज़ार में बेच दे, चाहे मुझे वो बाज़ार में ले जाकर बेच दे। ये उम्मत को एक सबक है। उस्ताद का एहतराम कि कैसे करना चाहिए, कहाँ तक करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये एक वेट है, ये एक वज़न जिसके ज़रिए से उम्मत को सिखाया जाता है कि उस्ताद के बग़ैर ये दुनिया अधूरी है। उस्ताद का जितना भी कदर करना वो कम है। अपना चमड़ा जो है निकाल कर उनके पैर के चमड़े जूते भी बना दें तो भी कम है। लेकिन ये जो स्कूल और मदरसों में यही फ़र्क हो रहा है कि मदरसे के बच्चों को देखो, कभी उस्ताद के सामने बगावत नहीं करते। ये हमको सीखना चाहिए। उस्ताद जब चलता है तो उसके चप्पल सीधे करके रखते हैं, जब उस्ताद बाहर निकलता है तो उसके चप्पल सीधे करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इसे देख कर उस्ताद का एहतराम हमको भी सीखना चाहिए। ये खुशी मना लिए, पैसे खर्च कर लिए, खाना खिला लिए, ये कोई बात माने नहीं रखती, बल्कि असल मतलब जो है वो ये है कि एहतराम दिल से करे, दिमाग से नहीं। दिमाग से जो चीज़ होती है वो पल भर में पलट जाती है, और दिल से जो होती है वो कायम व दायम रहती है। इसलिए बच्चे जो हैं, आज आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ आपके उस्ताद जो है ज़्यादातर मुसलमान हैं, लेकिन आगे वाले क्लासों में जब जाएंगे, आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पर दूसरे मज़हब के लोग आपको मिलेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। उनके साथ आप अगर अच्छा रवैया करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, उनकी कदर करेंगे, उनकी इज़्ज़त करेंगे, तो वो लोग अपने दिल से आपको पढ़ाएंगे। दिल से जब दिल को ट्रांसफ़र होता है वो कायम होता है। समझ में आ रहा बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हमारा मज़हब भी एहतराम सिखाता है। उस्ताद का एहतराम तो इतना है
हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे एक भंगी ने यह सिखाया था कि कुत्ता कब बालिग होता है। किसी ने सवाल किया कि कुत्ता कब बालिग होता है, तो हज़रत को मालूम नहीं था कि कब बालिग होता है, तो बहुत अफसरदा होकर बैठे थे कि कब कैसा जवाब दूं इसको। उसको बोल दिए थे कल आना, मैं उसका जवाब दूंगा। तो दूसरे दिन उस दिन शाम में एक भंगी गुजर रहा था। उसने पूछा, मियाँ क्यों इतने अफसरदा बैठे हो, रंजीदा बैठे हो? तो हज़रत ने बोला कि मुझे ये मसला मालूम नहीं है कि कुत्ता कब बालिग होता है, मुझे मालूम नहीं है। तो उस भंगी ने बोला, ये तो बहुत आसान तरीक़ा है, जब कुत्ता टांग उठाकर मूतना शुरू करता है तो बालिग हो जाता है। समझ में आ रहा? इस बात की कदर हज़रत ने इतने दिन तक किया जब तक वो इस दुनिया से नहीं गए। अगर वो सामने भंगी आता तो वो उठकर खड़े हो जाते, हज़रत उठकर खड़े हो जाते। ये हमारा मज़हब सिखाता है, उस्तादों के बारे में ये कदर सिखाता है। चाहे उस्ताद यही नहीं है कि आपको पढ़ाना सिखा दे, उस्ताद वो भी हैं जो आपको रास्ता चलना सिखाएं। आपको पैदा करने वाले भी आपके उस्ताद हैं, आपको बोलना सिखाने वाले भी उस्ताद हैं, आपको हुनर देने वाले भी उस्ताद हैं, आपको अच्छी अखलाक देने वाले भी उस्ताद हैं, अच्छी बात बोलने वाला भी उस्ताद आपका। इस तरह से कदर करना सीखो। जब ये कदर आ जाएगी तुम्हारे अंदर तो तुम दुनिया के अंदर चमक उठोगे। चमकने का खालिस मकसद ये है कि उस्ताद का दिल ना दुखाना। उस्ताद वो शे है, वो मुक़द्दस हस्ती है उस्ताद, उनके बग़ैर जो है दुनिया अंधेरी है। दुनिया का अंधेरा अगर छूटना है तो उस्ताद की ज़रूरत है। इस दुनिया को हर एक को उस्ताद की ज़रूरत है। इसलिए जो है उस्ताद की कितनी भी कदर करो, कितनी भी इज़्ज़त करो, ये कम है। इसलिए मैं आप बच्चों से बहुत ही मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि हम मुसलमान हैं। सबसे पहले जो है हमें जो है सबसे पहली जो आयत मिली हमें वो इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़ने के बारे में मिली थी। पढ़ाता कौन है फिर? जब पढ़ने की मिली तो पढ़ाता कौन है? उस्ताद के बगैर पढ़ाई नहीं मिलती। जब हमें पढ़ाने की कोशिश हो रही है तो उस्ताद के बगैर हम पढ़ भी नहीं सकते। इसलिए सबसे पहली चीज़ हमें जो होना चाहिए वो उस्ताद की कदर होनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से ये बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझें। छोटी बहुत अनबन हो जाती है, इंसान है, गलती हो जाती है। कोई उस्ताद इंसान के बगैर कोई चीज़ और नहीं है, फरिश्ता तो नहीं है। जब उस इंसान की गलती को आप बढ़ा ढंडोरा पीट कर और हज़रत के ख़िलाफ़ उठ के खड़े हो जाएंगे, ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए। उस्ताद की इतनी कदर करो कि उस्ताद आपको दिल से दुआ देने लगे। समझ में आ रहा? ये खाली एक दिन का प्रोग्राम करे, खाना खिलाए, फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा? दिल के अंदर इनकी मोहब्बत को पैदा करो, दिल के अंदर इनकी मोहब्बत को बिठाओ। इंशाअल्लाह आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों में से होंगे। जो उस्ताद को रंज देगा, जो उस्ताद का दिल दुखाएगा, भले वो इंसान दुनिया के अंदर कितना भी कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी ज़िंदगी दोज़ख बनकर रहेगी। ये दुनिया का मुशाहिदा है। दुनिया में देखो, जिसने उस्ताद की कदर किया वो कामयाब तरीन इंसानों में से हो गया, और जिसने उस्ताद का दिल दुखाया वो कामयाब होकर भी नाकारा होकर रहेगा। ये सारी हकीकतें हैं। इसलिए आप आज ये तहिया करो, करेंगे? एक हलफ उठाओ, ये कसम खाओ कि हम आज से आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कभी भी जो भी मुझे ये हर्फ सिखाएगा उसकी मैं ऐसी कदर करूँगा कि वो दिल से दुआएं देने वाला बने। इंशाअल्लाह इस उम्मीद पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। Thank you so much, sir, for this incredible speech on Teachers' Day. हमारी दरगाह में जो उस्ताद होते हैं असल में वही हमारे कौम के बुनियाद होते हैं। Now I would like to call Iqra and Sabah to say a few words about teachers on this occasion.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good afternoon to the respected principal, teachers and my dear friends. We all have gathered here today to celebrate Teachers' Day. Today's day is a special day for all of us, where we can pay a hearty tribute to our dear teachers who take untiring efforts to build our futures. Teachers' Day is celebrated on 5th September every year. 5th September is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was the second President of India. He was also a great scholar and a teacher. When Dr. Sarvapalli Radhakrishnan becomes President of India, some of his former students wanted to celebrate his birthday on 5th September. But he suggested that instead of celebrating 5th September as his birthday, it would be a proud privilege of his day is celebrated as Teachers' Day. Then 5th September is celebrated as Teachers' Day every year. This day is celebrated by all students in India with great joy and happiness. It gives us opportunity to express our gratitude towards our teacher. Teachers play a big role in building the character of students. They give us knowledge, believe in us, and help us achieve our dreams. On behalf of all students, I would like to thank you all the teachers for their tireless efforts they take to give us knowledge and shape of our personality. Thank you so much, teachers, for and all once of again happy Teachers' Day to all our dear teachers. Thank you, dear friends, for your outstanding words. कामयाबी की राह में उस्ताद की दुआ ज़रूरी है. वो उस्ताद ही है जिनके बिना ज़िंदगी अधूरी है. And now I would like to call Amina and team for their performance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. शुक्रिया 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 शुक्रिया. आज जो भी है हम सब है आपकी बदौलत, आपके समर्पण को सलाम. शुक्रिया 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 शुक्रिया. हाथ थाम के आपने सबको सिखाया, माफ की गलतियाँ संभाला जब लड़खड़ाया. शुक्रिया 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 शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. Thank you, Amina and team, for your melodious voice. Now I request Aijaz Sir, Joint Secretary of our institution, to say a few words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुहतरम सदर जलसा जनाब मुस्तफ़ा साहब, जलसे के सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, दीगर अरकान, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम. इस्लाम में अल्लाह ताला माँ बाप का एक बड़ा दर्जा दिया है. माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाज़ा है. इसी तरीके से अल्लाह ताला ने उस्ताद का भी, जो माँ बाप के बाद जो दर्जा आता है वो उस्ताद का आता है. बुज़ुर्गी के एतबार से, तक़वा और परहेज़गारी के एतबार से गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जो औलिया के सरदार हैं, जिस तरीक़े से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया के सरदार, इसी तरीक़े से जनाब गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, इनका बुज़ुर्गों में सबसे बड़ा दर्जा आता है. जब मकतब ख़त्म होता है तो गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, उनके बचपन का दौर में की बात है,
जब वो असातिज़ा थे, उस वक्त की बात, सबसे पहले मकतब जो ख़त्म होते ही सबसे पहले जो शागिर्दों में वो सबसे आगे रहते थे ताकि उस्ताद के जूते वो पेश करें। समझो इतने बड़े बुज़ुर्ग जो वलियों के सरदार हैं, उनका ये हाल है तो हमारे लोगों का, अब जो हम सब उनकी नज़र में हम सबसे हक़ीर हैं। हम लोग कितना एहतराम करना है। वो उतनी बुज़ुर्गी पे फाइज थे, उतने बड़े वली अल्लाह का गुज़रे हैं। जब उनका ही हाल था तो उस्ताद के बारे में इतनी बड़ी क़दर और अज़मत थी, तो हम लोगों को भी एक उस्ताद की कितनी बड़ी क़दर करना है, ये हम लोग उनसे सीखना है। क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए बहुत कुछ ऐसे तालीमात छोड़ कर गए हैं, उसके अगर उनकी तालीमात के ऊपर हम क़दर करना चाहें तो एक उस्ताद की अच्छी हम क़दर कर सकते हैं दुनिया में। क्यों बोले तो माँ बाप के बाद जो दर्जा आता है वो एक उस्ताद का आता है। उस्ताद के बिना एक ज़िंदगी अधूरी है। जैसा माँ बाप बच्चे को परवरिश करके बड़ा करके तरबियत करके उसको एक चलने की हद तक सिखाते हैं, इसी तरीके से उस्ताद भी है। आप लोगों को 15 साल 20 साल पढ़ाकर एक ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनाता है। अगर हम उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करें, उस्ताद की क़दर नहीं करें तो अल्लाह ताला हमना इल्म नहीं देता। देखो बहुत सारे बच्चे उस्तादों की क़दर नहीं करते, उनसे सामने एक तरीक़े से रहते हैं, पीछे एक तरीक़े से मजाक उड़ाने का, मिमिक्री करने का। वो ऐसे बच्चों को तुम्हें फॉलो करके देखो और ज़िंदगी में तुम्हारी ज़िंदगी में भी देखे रहेंगे, शायद उन्हें कामयाब नहीं होते, आवारागर्दी करते फिरते रहते हैं। क्यों बोले तो उनको जो वक्त अल्लाह ताला दिया था जो पढ़ाई के वक्त, तो उस्ताद की क़दर नहीं करने की वजह से वो आवारागर्दी करते फिरते रहते हैं। जो बच्चा उस्ताद की तेमादारी करता, उस्ताद की हर बात पर अमल करने पहले से तैयार रह जाना, उस्ताद का क्या हुक्म आता इसे हम अमल करेंगे, इस तरीक़े से आप लोग उस्ताद की अज़मत को उस्ताद के बोले हुए अहकाम पर चलने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपको अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी कामयाबी देता और इज़्ज़त भी देता, इल्म भी देता। उस्ताद के बगैर इल्म, मदने से अदना बड़े से बड़ा हुनर भी हो दुनिया में, उस्ताद के बगैर नहीं है। हर काम के लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उस्तादों की क़दर करो। आज का दिन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है और शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा तरीक़े से उस्तादों की अज़मत को बढ़ाया है। इसी तरीक़े से आगे भी चलकर आप लोग उस्तादों की क़दर करो, उनकी अज़मत को जानो। हमें मज़हब के लिहाज से नहीं देखना है, अगर आगे हम जहाँ भी जाना है पढ़ना है तो उस्ताद समझ कर, एक उस्ताद कोई भी हो, कौन से भी मज़हब से हो, उसकी इज़्ज़त करना सीखो। अल्लाह ताला आपको अच्छा इल्म दे और कामयाबी की तरफ गामज़न करे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir. Now I would like to call Ruqayya for Urdu speech. कितनी मेहनतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मेहनतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ ना जानती थी, इसका कुछ मुझे सिखाया। पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ़ न थी ज़रा भी इतने बड़े जहां से। तमाम हाज़िर महफिल को अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में कुछ रिश्ते खूनी होते हैं, जबकि बहुत से रिश्ते और ताल्लुक़ रूहानी, अखलाक़ी और माशराती तौर पर होते हैं। उन्हीं में से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन का रुतबे के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि अगर दुनिया में वालिदैन के बाद बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है तो वो मुअल्लिम यानी उस्ताद है। उस्ताद किसी भी माशरे के मेमर होते हैं।
استاد پتھر کو ہیرے میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ استاد کی اہمیت علم کی بارش کی سی ہے۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے ملک سابق صدر ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن نے یوم پیدائش پر یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 5 سپٹمبر 1828 عیسوی کو تمل ناڈو میں ہوئی۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک عظیم فلسفی اور ماہر تعلیم کے طور پر مشہور ہوئے۔ رادھا کرشنن ایک کامیاب مدرس اور مصنف تھے، اس لیے ہر سال ڈاکٹر رادھا کرشنن کی یوم پیدائش پر استاد کی اہمیت کو بتانے کے لیے ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹیچرز کا شکریہ ادا کریں۔ انہوں نے ہمیں صحیح راستہ بتایا اور دینی تعلیم کے روشناس کیا، ہماری غلطیوں پر ہمیں سمجھایا اور اچھی نصیحت دی۔ گمنامی کے اندھیرے میں تھی ایک پہچان بنا دیا گمنامی کے اندھیرے میں تھی ایک پہچان بنا دیا، دنیا کے غم سے انہوں نے مجھے انجان بنا دیا۔ ان کی مجھ پر ایک ایسی مہربانی ہوئی کہ میرے استاد نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا۔ السلام علیکم۔ Thank you, Ruqayya. A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart. Now I would like to call Asma to talk about importance of teachers in poetry form. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنے روداد جب بھی ہم کسی کی کامیابی دیکھتے ہیں، جب بھی کسی کی کامیابی دیکھتے ہیں، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر ایک راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر ایک راہ کو روشن، ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ شد ہوتے ہیں۔ برستے ہیں یہ ساون کی طرح اس پیاسی زمین پر، برستے ہیں یہ ساون کی طرح اس پیاسی زمین پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ ان کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، انہی کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہیں خدمت استاد کرتے ہیں۔ زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، بٹ فرق صرف اتنا ہے کہ استاد سبق دے کر امتحان لیتے ہیں اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ الگ ہی بات ہے یہ جو خاموش کھڑے رہتے ہیں، الگ ہی بات ہے یہ جو خاموش kھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں۔ شکریہ۔ Thank you, Asma. Now it's time to honor all the management members on behalf of myself and my friends. Syed Mustafa Sir, President of our institution. Iftikhar Ahmad Sir, Secretary of our institution. Ejaz Sir, Joint Secretary of our institution. Abdul Subhan Sir, Director of our institution. Thanks to all the management members. Now I would like to express my gratitude to my beloved teachers who are helping us in our journey. Jafar Sir, HM of institution. Kifayatullah Khan Sir. Kifayatullah Khan Sir.
Nafisa ma'am. Umme Hani ma'am. Mariam Asma ma'am. Rukhaya Rukhaya ma'am. Siddiqa ma'am. Nishad Nishat ma'am. Nishat ma'am. Aisha Tanzila Aisha Tanzila ma'am. Aisha Tanzila ma'am. Afia Zarnain Afia Zarnain ma'am. Nafisa Nafisa aunty. Nafisa aunty. Tasneem aunty Tasneem aunty. Tasneem. Abba A teacher is one who helps others and influences lives forever. Now I request to Mr. Syed Mustafa Sir, President of this function, to say a few words. अस्सलाम वालेकुम पूरे उस्तादों को, पूरे टीचर्स को, पूरी मेरी तरफ से मुबारकबाद टीचर्स डे का। Now, last but not least, I would like to call Asma to deliver a vote of thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teachers and my dear friends, a very good afternoon to all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for the all dignitaries assembled here. I would like to thank our management members, thank you, sir, who honored this function with their great inspirational thoughts. I would like to thank our beloved principal, staff members, students and participants for making this function as a grand success. Next, I would like to thank our chief guest of celebration, Ayub sir, Iftikhar sir, Vice President of our institution. Cordially thank you, sir. Joint Secretary Muhammad Ejaz sir, thank you, sir. And I would like to thank our school principal sir, Mr. Jafar sir. Thank you. I request all of you to have your lunch. After lunch, there are games for teachers.